Sacred wooden beads, पवित्र लकड़ी की माला. Once there was huge temple built in center of lake. There lived great master and 20 of his disciples who would learn Buddhism teachings. झील के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था. वहां एक महान गुरु और उनके 20 शिष्य रहते थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा सीख रहे थे. There was a precious string of wooden beads which was sacred and was enshrined in temple. As temple was in middle of lake, it was connected to rest of world with a small boat and it was not easy to go there. मंदिर में एक बहुत मूल्यवान लकड़ी की माला थी जो पवित्र मानी जाती थी और मंदिर में सुरक्षित रखी गई थी. क्योंकि मंदिर झील के बीच था, इसलिए वहां जाने के लिए केवल एक छोटी नाव थी और वहां पहुंचना आसान नहीं था. All disciples would concentrate on learning and were going to complete their study soon. Until one day, Master assembled everyone and announced that Buddha's sacred beads were lost. सभी शिष्य पढ़ाई पर ध्यान देते थे और उनकी शिक्षा पूरी होने वाली थी. तभी एक दिन गुरु ने सभी को बुलाया और घोषणा की कि बुद्ध की पवित्र माला खो गई है. Everyone was shocked as temple was guarded 24 hours in rotation by disciples themselves, so no one from outside could have sneaked in and stole those beads. सब लोग चौंक गए क्योंकि मंदिर की 24 घंटे पहरेदारी शिष्य ही करते थे. इसलिए कोई बाहर से अंदर घुसकर माला चुरा नहीं सकता था. Soon everyone who assembled there started to discuss about it and became suspect of others. जल्द ही वहां इकट्ठे हुए सब लोग आपस में चर्चा करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे. Master saw this and said, "I don't care about this matter. If only the one would admit his mistake and promise to treasure the Buddha beads. I am willing to give it to him. I am giving you all 7 days for consideration." गुरु ने यह देखा और कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है. अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करे और यह वचन दे कि वह बुद्ध की माला की रक्षा करेगा, तो मैं उसे ही यह माला दूंगा. मैं तुम्हें सोचने के लिए 7 दिन का समय देता हूँ. No one confessed on first day nor on second day, and with time mutual respect and trust between young disciples who were soon going to become monk, was gone. They talked no more. Even on 7th day, no one stood out for confession. पहले दिन किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, नहीं दूसरे दिन. धीरे धीरे आपसी विश्वास और सम्मान जो युवा शिष्यों में था, खत्म हो गया. वे एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिए. 7वें दिन भी किसी ने स्वीकार नहीं किया. At end of day, Master again assembled everyone and announced, "I am glad that you have convinced me of your innocence. Even the temptation of the Buddha beads can't get you, you are resolute enough. All right, the practice has come to the conclusion. You can go home tomorrow, then." दिन के अंत में गुरु ने सबको फिर से बुलाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम सबने मुझे अपनी निर्दोषता का विश्वास दिलाया. बुद्ध की माला का लोभ भी तुम्हें डिगा नहीं सका. अच्छा, साधना समाप्त हुई. तुम सब कल घर जा सकते हो. After a while, when junior monks were ready to leave, they saw a blind monk knelt before Master. Seeing this, everyone scowled at him as they thought that he had confessed about his wrong deed and then left. कुछ देर बाद जब छोटे भिक्षु जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि एक अंधा भिक्षु गुरु के सामने घुटनों के बल बैठा था. यह देखकर सबने उसे घूरा क्योंकि उन्हें लगा कि उसने अपनी गलती कबूल कर ली है और फिर चले गए. After everyone left, Master turned to blind monk and said, "Did you steal Buddha beads?" सबके चले जाने के बाद गुरु ने अंधे भिक्षु से कहा, क्या तुमने बुद्ध की माला चुराई थी? Blind monk replied, "I agree Buddha beads had lost, but heart of Buddha is still here and I have come here for self-cultivation of Buddha's heart." अंधे भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं मानता हूँ कि बुद्ध की माला खो गई थी, लेकिन बुद्ध का हृदय अब भी यहाँ है.
मैं तो यहाँ बुद्ध के हृदय को आत्मसात करने आया हूँ। Master asked, So? You didn't take those beads, then why are you sustaining all the suspicion? गुरु ने पूछा, तो तुमने माला नहीं ली थी, फिर भी तुमने यह संदेह क्यों सहा? Blind monk replied, This suspicion has already hurt my heart, his heart, and everyone's heart in the last 7 days. Someone had to sustain to resolve the suspicion. अंधे भिक्षु ने कहा, यह संदेह पिछले 7 दिनों से मेरे दिल को, उनके दिल को और सबके दिल को चोट पहुंचा रहा था। किसी को तो यह सहना ही था ताकि यह संदेह समाप्त हो सके। The great master took out the legendary Buddha beads from his robe and put it on his neck. He said, The Buddha beads is here. You are the only one to comprehend the true meaning of sustain. महान गुरु ने अपने वस्त्र से पवित्र बुद्ध की माला निकाली और अपनी गर्दन में डाल ली। उन्होंने कहा, बुद्ध की माला तो यही है। केवल तुम ही हो जिसने सहन, सस्टेन का सच्चा अर्थ समझा है। Moral. कभी कभी जीवन में हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ताकि विवाद समाप्त हो और अनावश्यक झगड़े और मतभेद कम हो। जो लोग सहन करना जानते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक विकसित होते हैं और अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त करते हैं। Difficult words with Hindi meaning and pronunciation. प्रेशियस, प्रेशस, मूल्यवान, कीमती। Sacred. एनश्राइंड, एनश्राइंड, सुरक्षित रखा हुआ, मंदिर में स्थापित। स्नीक्ड, स्नीक्ड, चोरी छिपे घुसना। सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, शक करना। कॉन्फेस, कन्फेस, स्वीकार करना। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, लोभ, लालच। रिजोल्यूट, रेजोल्यूट, दृढ़ निश्चयी। स्काउल्ड, स्काउल्ड, घूरना, नाराज होकर देखना। सस्टेन, सस्टेन, सहना, झेलना।